Hello everyone, welcome to you all in the next session of arithmetic progression. In last session we have learned up to sum of n terms of an AP. Now the next topic, today we will be learning about the selection of terms in AP, arithmetic mean and the properties of AN. The first topic that we are starting today is selection of terms. Now before starting it, let's go for a question. If I am having the sum of three terms in an AP as 24 and their product is 480 and we have to find that terms, how to do it? Till yet you are aware of the three terms of AP, we can take them as A plus D, A plus 2D. When we'll go for solving it, we will be getting an equation in terms of A and D, then three terms will be in the form of product. So it is quite a lengthier option. Instead of it, as per the nature of maths, we are getting some conditions so that we can solve it easily and in short time. So the selection of terms helps us in that manner. Let's go for it. Three terms in AP if I have to take, and I have taken them in terms of A minus D, A and A plus D. It is an easier concept that you will be finding while solving this question. The next condition is, here you can see that if I have taken the three terms in AP as A minus D, A and A plus D, their common difference is D, as A minus D is equal to D, which is equal to A plus D minus A. The another condition, if I am taking fourth term in AP, I will be taking the four terms as A minus 3D, A minus D, A plus D and A plus 3D. Here, can you tell about the common difference? Let us go for it. Let's see. Second term I have taken as A minus D and minus A minus 3D. It gives you 2D. Same difference in the remaining terms also. So dear children, just see this. Here D, as we generally used to learn in AP, D is common difference. But for selection of terms, it is not necessary that D is common difference. For four terms, common difference is equal to 2D. Okay, let's go for the questions. See the question. Find three terms in AP whose sum is 27 and the product is 648. Okay, let's go for the solution. As per the terms that you have learned earlier, let us take the three terms in AP as A minus D, A plus D. Now as per the question, we get the sum as A minus D plus A plus D is equal to 27. Now see, what is the difference between these values if I have taken these three terms or this term? On adding this, what am I getting? I am getting only the A. This is 3A is equal to 27. So this has made the work easier. इसमें हमारा काम बहुत easy हो गया. यहाँ सीधे हमारे पास A की value आ गई. I am getting 27 by 3 is equal to 9. नहीं तो in the previous concept अगर हमने ये सारी values ली होती तो हमें एक equation मिलती. फिर उसका use करके हमें दूसरी equation निकालनी होती. But यहाँ हमें पहले से ही एक value मिल गई तो equation में put करने से अब हमारा काम easy हो जाएगा. Now let us go for the product. Also, the product of the three terms A minus D, A plus D is equal to 648. Let's put the value of A की value यहाँ put करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर कितनी जल्दी आता है. This is 9 minus D, 9 plus D is equal to 648. Now a plus b into a minus b form apply किया and we have got 81 minus d square is equal to
When we will divide this, we are getting 72. सॉल्व करने से मुझे d स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आई हैव गॉट, और d की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, प्लस माइनस 3. रिमाइंड दिस चिल्ड्रन, यहाँ दोनों ही साइन आपको लेके चलने हैं एंड d की वैल्यू, दोनों ही वैल्यूज से आपने टर्म्स फाइंड करने हैं. सो हाउ टू गेट इट? अब जब आपके पास d इज इक्वल टू 3 है, a ऑलरेडी आपके पास आ चुका है 9, सो द 3 टर्म्स आर, क्या हो जाएंगे ये 3 टर्म्स आपके पास में? द 3 टर्म्स आर a माइनस डी 6, एक नंबर मिल गया, द d इज इज कॉमन डिफरेंस, यू विल बी गेटिंग 9 एंड 12. उस तरह से जब d इज इक्वल टू -3 होगा तो आपके पास नंबर्स आएंगे 12, 9 एंड सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12 आपका नया क्वेश्चन है. द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन AP whose common difference is 10 degree actually. Find the angles. Okay, so यहाँ पे बस हमें एक वैल्यू दिख रही है जो कॉमन डिफरेंस है, बट हमें साथ में मालूम है कि दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल. तो अब इस तरह को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए. एक क्वाड्रिलेटरल में एज वी आर अवेयर ऑफ 4 एंगल्स आर देयर, तो 4 टर्म्स AP में हैं, तो हमें क्या यूज करके चलना है, लेट द एंगल्स आर, कौन कौन से होंगे, 4 टर्म्स इन AP, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d. ओके, व्हाट इज गिवन टू यू, आपको यहाँ दिया है कॉमन डिफरेंस इज 10 डिग्री. और बेटा यहीं एक मिस्टेक हो जाती है, जैसे हम यूज टू होते हैं AP में कॉमन डिफरेंस D, तो हम D इज इक्वल टू 10 डिग्री लेके चलते हैं, जो कि आपका आंसर रॉन्ग देता है. क्यों होता है रॉन्ग? क्योंकि आपने पहले ही देखा जब सिलेक्शन ऑफ टर्म्स में यहाँ कॉमन डिफरेंस 2D है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म. सो वी विल बी टेकिंग 2D इज इक्वल टू 10 डिग्री. इस तरह से D की वैल्यू आपके पास 5 डिग्री मिलेगी. अब इस वैल्यू का यूज करके आप आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. नाउ बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज ऑफ 360 डिग्री. तो वी विल बी राइटिंग a minus 3d plus a minus d plus a plus d plus a plus 3d is equal to 360. जब आपने इसे सॉल्व किया आपको मिल रहा है 4a is 360 और a is equal to 90 डिग्री. सब आपके पास a है, साथ ही आपके पास d भी है. सो लेट अस गो फॉर द एंगल्स. बस इस क्वेश्चन में d या 2d क्या गिवन है उसकी तरफ ध्यान दीजिए. Here, therefore, the angles are, what are they? जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको क्या आंसर मिलने वाला है? दिस इज 75 डिग्री, 85 डिग्री. अब एक बार आपके पास एक वैल्यू आ गई, आपने a की वैल्यू पुट करी 90 डिग्री एंड d इज 5 डिग्री, तो 90 माइनस 15 गिव्स यू 75. उसके बाद आपको मालूम ही है कि कॉमन डिफरेंस 10 है, तो ऐड कॉमन डिफरेंस इन इट. 75 प्लस 10 85 प्लस 10 95 एंड देन 105 डिग्री. सो इस तरह से यू कैन गेट ऑल द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल. डन. सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी गेट in selection of terms. So you are having some questions in exercise also, you can go through it and solve them. Let's go for the next topic now. The next topic that we are going to start is arithmetic mean. ये चीज़ आपने 10th में नहीं पढ़ी. Now a new pattern has started. Arithmetic mean is generally represented as AM or capital A. ये क्या है? Let us take two terms A and B. If I have to find the arithmetic mean between them, AM of A and B is A plus B by is, find
AM of 12 and 14, if we have to find, we will be adding that two numbers. 12 plus 14 upon 2 will give us 30. So you can see it easily. 12, 13, 14 are in AP. इस तरह से आपको ये मीन भी मिल जाता है और you can check it whether they are in AP or not. Now हमेशा ज़रूरी नहीं कि हमें बस एक ही मीन फाइंड करना पड़े. If we have to find many means in between the two numbers AB, so how to do that? That point we will discuss now. Let us take A1, A2, A3 up to AN. These numbers, if we are inserting between A and B, अगर A and B I have taken, अगर मेरे पास दो नंबर्स हैं A and B और मैं उनके बीच में n टर्म्स, n numbers or terms, whatever we can say, मैं उसमें if I have taken some numbers A1, A2, A3 up to AN and these numbers I have inserted, मैंने उनके बीच में दो numbers मुझे मेरे पास है A and B, उनके बीच में अगर मैंने ये सब numbers रख दिए तो जो resultant मिला, if it is an AP, जो ये resultant जो sequence मुझे मिल रहा है अगर ये AP है, then A1, A2 up to AN are called arithmetic means AM. Let on inserting A1, A2, AN between A and B, number of terms in AP are कितने हो जाएंगे? There are n ANs plus A and B, two terms, तो n plus 2. तो इस बार n जो भी फॉर्मूला में यूज़ होगा, it is not number of terms in AP, it is number of AMs. इस चीज़ को याद रखिएगा. So अगर मेरे पास n plus 2 टर्म्स हैं तो b कौन सा टर्म होगा आपका? b is equal to n plus 2th टर्म, लास्ट टर्म होगा. n plus 2th टर्म is b. जब फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो व्हाट शैल वी गेट? a प्लस जो भी पोजीशन होती है उससे 1 लेसर d आता है, तो आई विल बी गेटिंग n plus 1 d is equal to b और d is equal to b minus a upon n plus 1. So this is a very important formula for finding d. एक बार अगर ये d मिल जाए हमें, ये फॉर्मूला आपका याद हो जाए, तो आप काफ़ी जल्दी इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इज़ इट ओके? सो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चंस एंड कैसे सॉल्व करें जस्ट देखिए. उस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जस्ट सी वन मोर थिंग. If I am having the AP as A, A1, A2 up to AN and B, A is the first term here, A1 second term, A2 is third term, and since the last A plus N plus 2th term is B, A N plus 1th term is AN. ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है. जब हम जनरल टर्म फाइंड करते हैं हम देते हैं AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं. बट देखिए यहाँ A1 क्या है? A2 है, सेकेंड टर्म है. सेकेंड टर्म को अगर मैंने A1 लिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी AP के हिसाब से? इट विल बी A प्लस D. उसी तरह से थर्ड सेकेंड मीन
जो थर्ड टर्म हो गया a+2d, एंड इसी तरह जब nth मीन हम निकालेंगे तो इट इज़ a+nd. सो द मेजर डिफरेंस बिटवीन द nth टर्म एंड nth मीन इज nth टर्म में 1 लेसर d होता है, n-1 इंटू d होता है, वेयर एज इन nth मीन जो पोजीशन है उतने ही d आएंगे. इस चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसी में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, इस चीज़ को भूल जाते हैं, जनरली ये फॉर्मूला लगा देते हैं जिससे आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है. सो जब टर्म लेंगे जनरल टर्म तो उसमें 1 लेसर डी, और जब जनरल मीन लेंगे तो जितना पोजीशन उतने ही डी होंगे, उसमें डी इंटू वही नंबर आएगा. ओके, लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड. लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 27. इन क्वेश्चन में क्या लिखा है? इंसर्ट 4 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 19. यहाँ ए मेरे पास 4 है एंड बी इज़ 19. ओके, तो लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 27. वी विल स्टार्ट विद लेट 4 मीन्स आर a1, a2, a3 एंड a4. क्योंकि हम जानते हैं कि अगर मैंने दो नंबर्स के बीच में मीन इंसर्ट किए तो आई विल बी गेटिंग एन AP, एक AP मिलेगा मुझे. तो द AP इज पहला टर्म कौन सा है? 4, देन a1, a2, a3, a4 एंड द लास्ट टर्म इज 19. इस तरह से आपको एक AP मिल गया जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 6. 4 मीन्स एंड 2 नंबर्स, इन ऑल 6 टर्म्स हैं इसमें. ठीक है, तो यहाँ पे अगर मुझे सॉल्व करना है, नंबर्स को लेके आना है, तो वी कैन यूज़, अगर आपको फॉर्मूला, यू कैन यूज़ डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ d. यहाँ पे a आपका 4 है, b आपके पास है 19, तो d आप डायरेक्टली, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो यू कैन अप्लाई दैट फॉर्म एंड आंसर आपको मिल जाएगा. कैसे? b माइनस a अपॉन n+1 आप जानते हैं. पुट द वैल्यू एंड गेट योर आंसर. 19 माइनस 4 अपॉन n कितना है इस बार? n इज नंबर ऑफ मीन्स. हियर n इज इक्वल टू 4. So I am writing 4 plus 1 5, so I am getting 15 by 5 and it is 3. अब आपके पास एक बार D मिल गया तो आप जानते हैं कि AP में से अगर आपके पास A है तो हाउ टू फाइंड द D. तो A1 क्या हो जाएगा आपके पास में? A plus D. A में D को ऐड कर दीजिए. You are getting it as 4 plus 3 which is 7. Similarly A2 में फिर से A1 में आपने A1 में D को ऐड कर दिया तो you will be getting A2. Then it is 10. वैसे ही A3 आपका 13 and A4 you will be getting as 16. इस तरह से आपको पूरे मीन्स मिल जाएंगे. द नेक्स्ट ऑप्शन समझिए, आपके पास अगर आपको ये याद नहीं है फॉर्मूला, अगर आपको D की वैल्यू याद नहीं है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? अगेन यू विल बी टेकिंग नंबर ऑफ टर्म्स. कितने टर्म है यहाँ पे? 6 टर्म्स आर देयर. तो आप स्टार्ट करेंगे a6 इज इक्वल टू 19. दूसरा मेथड, a6 इज इक्वल टू 19 लिया आपने. यू विल बी राइटिंग द फॉर्मूला. अगर ये a6 स्मॉल a6 इज द पोजीशन ऑफ टर्म. टर्म में क्या होता है? जो पोजीशन है उससे 1 लेसर d इंटू होता है, इजंट इट? तो यहाँ पे 5d आएगा इज इक्वल टू 19. जब आप इसे सॉल्व करेंगे, a की वैल्यू आपके पास दी हुई है 4, तो जब सॉल्व करेंगे तो अगेन आप देख सकते हैं आपके पास D की वैल्यू फिर से 3 आ जाएगी, विच इज़ 15 माइनस 19 माइनस 4 बाय 5 एंड इट इज़ 3. और फिर आगे आप इसी तरह से प्रोसीड करके A1, A2, A3, A4 फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 29 देखिए. देयर आर n अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 23. मतलब यहाँ A 1 दिया है और B 23 दिया हुआ है. इस बार हमें वो टर्म्स निकालने हैं.
उन टर्म से रिलेटेड हमें n निकालना है, पर कुछ और कंडीशन दी हुई है कि रेशो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 7:1। तो आपको फाइंड n बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो कैसे सॉल्व करेंगे आप उसे? लेट्स गो फॉर इट। अगेन फिर से हम स्टार्ट करेंगे। लेट द n मीन्स बी a1, a2, a3 up to an। Therefore, अब इन नंबर्स को भी जब हम लिख दें 1, a1, a2, a3 up to an, कॉमा 23 क्या बन जाएगा ये? इट विल बी एन AP। ये एक AP होगा एज पर द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन्स। अब जब आप AP मिल गया आपको, अगेन आप D का यूज़ करके, वैल्यू यूज़ करके D निकाल सकते हैं। यहाँ पे A इज इक्वल टू 1 है, यू आर हैविंग B इज इक्वल टू 23, नंबर ऑफ मीन्स n है, तो D क्या हो जाएगा आपके पास में? D इज इक्वल टू, अगेन वी विल बी यूजिंग द फॉर्मूला B माइनस A बाय n प्लस 1। इस फॉर्म का यूज़ करने से आपको क्या मिल जाएगा? 23 माइनस 1, 22 बाय n प्लस 1 D मिल गया आपको ये। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है कि रेशो ऑफ द लास्ट मीन टू द फर्स्ट मीन इज 7:1। सो लास्ट मीन क्या है आपके पास? एज पर द क्वेश्चन an अपॉन a1 क्या दिया हुआ है आपको? इट इज 7/1। रेशो आपका 7:1 है, तो यू आर गेटिंग 7/1। अब वैल्यू पुट करते हैं इसकी। वैल्यू पुट करने से क्या आएगा? an क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, इसी एक पॉइंट में जनरली गलतियां होती हैं। जैसे ही an दिखा हम a प्लस n माइनस 1 वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, पर बच्चों याद रखिए दैट फॉर्मूला इज़ फॉर nth टर्म, नॉट फॉर nth मीन। एज आई टोल्ड यू, जब nth मीन आप लेके चलते हैं तो उसमें जितना n है उतना ही टर्म में वैल्यू आएगी। आई विल बी राइटिंग a प्लस n d के साथ n ही मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये मीन है। अगर कोई पर्टिकुलर टर्म होता तो उसमें 1 माइनस होता। नाउ हियर a1 इज a प्लस d इज इक्वल टू 7/1। आगे इसे सॉल्व करें। चलिए पुट द वैल्यू ऑफ d और ट्राई करिए कैसे सॉल्व होता है। जब d की वैल्यू पुट करेंगे आपके पास कुछ टर्म्स आएंगे, उसको सॉल्व करते जाएं। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ a की वैल्यू आपके पास 1 है, d की वैल्यू आपने ऑलरेडी निकाली हुई है 22 अपॉन n प्लस 1। इस टर्म में n भी है, अपॉन 1 प्लस 22 अपॉन n प्लस 1 यू आर गेटिंग इज इक्वल टू 7। एलसीएम लेके सॉल्व करिए, देखिए क्या मिलता है। जब आप एलसीएम लेके उसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा 23 n प्लस 1। आप ट्राई करिए और चेक करिए जो मैं लिख रही हूँ वो आंसर आपका सही है कि नहीं। एंड डिनोमिनेटर इज n प्लस 23 इज इक्वल टू 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, कोई बताइए। करेक्ट, द वैल्यू ऑफ n इज 10। सो इस तरह से आपको आंसर आपका मिल गया। तो हमेशा इस क्वेश्चन में बाकी सब आप पुरानी चीज़ों की तरह करेंगे, बस रिमाइंड दिस while writing the value of a n you have to take care। यहाँ पे a प्लस n d आएगा, a प्लस n माइनस 1 d नहीं। Is it okay? B part of question number 29। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? If a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n be am of a and b, then prove that n is equal to 0। As we know that am, arithmetic mean of a and b, single am of a and b is given by the formula a plus b by 2
but in this question it is given as a to the power n plus s. As per the question we will write, ये मीन किसके इक्वल दिया हुआ है आपको? It is equal to a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 upon a to the power n plus b to the power n. Now we will be solving it. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसे सॉल्व करें और देखिए n की वैल्यू कैसे मिलती है हमें. Let us cross multiply the terms. हमें मिलेगा 2 times of a to the power n plus 1 plus 2 times b to the power n plus 1 is equal to a plus b into a to the power n plus b to the power n. जब हमने इसे आगे सॉल्व किया तो we are getting 2 to the power n plus 1 plus 2 to the power b 2b to the power n plus 1 is equal to, let us open the bracket, a into a to the power n is a to the power n plus 1 plus into b to the power n plus b into a to the power n plus b to the power n plus 1. यहाँ 2 times a to the power n plus 1 है, whereas here we are having a to the power n plus 1. So it will get cancelled and we are left with a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to, ये दोनों टर्म्स इस तरफ जाके कैंसिल हो गए. नाउ वी आर गेटिंग a b टू द पावर n प्लस b a टू द पावर n. ठीक है, अब इसके आगे कैसे सॉल्व किया जाए? लेट अस गो फॉर द थिंग्स. हमने बिगर पावर a की एक तरफ करनी है, a टू द पावर n प्लस n माइनस में ये टर्म लेके जाऊंगी a टू द पावर n इज इक्वल टू a b टू द पावर n माइनस b टू द पावर n प्लस 1. ओके, अब हमें कॉमन निकालना है. कॉमन कैसे आएगा? जो स्मॉलर पावर जब भी हम लिखते हैं a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर अगर मैंने लिखा तो विच वन इज़ द स्मॉलर पावर? द स्मॉलर पावर इज़ a स्क्वायर. इट विल कम आउट. कॉमन क्या निकलेगा? a स्क्वायर. वैसे ही बताइए ज़रा, इसमें स्मॉलर पावर कौन सी है a की? a टू द पावर n प्लस 1 है? नहीं ना, इट इज़ a टू द पावर n. So we will take out a to the power n common and we are left with, अब अगर आपके पास a स्क्वायर आपने कॉमन निकाला, यहाँ 3 times a है, a into a and this is a into a. If I'll take out a स्क्वायर कॉमन तो क्या बच जाएगा? a बचता है, एक पावर लेस होती है, पावर सब्ट्रैक्ट होती है आपस में. तो इस तरह से यहाँ क्या बच गया? a माइनस b इज ऑलरेडी देयर. सिमिलरली b to the power n I am taking out as common, I am left with a minus b again. अब हम क्या कर सकते हैं? I'll write a to the power n is equal to b to the power n. मगर मैंने कंपेयर किया, दोनों तरफ a minus b हैं, so I can get these two as equal. अब इसकी अगली स्टेप क्या होगी? अभी भी मुझे n की वैल्यू नहीं मिली. So what shall I do? I'll write a by b whole to the power n. मैंने b to the power n को डिनोमिनेटर में लाया और वी कैन से मैंने दोनों तरफ b to the power n से डिवाइड किया, तो आई एम गेटिंग इट एज 1. अभी भी n कहाँ है? सो यू नो दैट समथिंग टू द पावर 0 क्या होता है? किसी भी टर्म की पावर 0 क्या होती है? इट इज़ 1. तो हम कितना भी बड़े से बड़ा टर्म लिखें और उसकी पावर 0 कर दें तो आंसर क्या आएगा आपका? 1 आएगा. सो वी विल राइट हियर फॉर गेटिंग n लाना है, इसीलिए इतना कुछ करना है हमें. सो आई एम राइटिंग जस्ट सी a बाई b टू द पावर 0. हमें मालूम है कि किसी भी टर्म की पावर 0 1 होता है तो ये भी 1 होगा, बट ये हमने क्यों लिया? ताकि हम कंपेयर कर पाए. बेसिस आर सेम, वी कैन कंपेयर द पावर्स. नो, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? n इज इक्वल टू 0, जो आपको प्रूव करना था. इज इट ओके चिल्ड्रन? इसी तरह आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सॉल्व करिएगा. द सेम टर्म इज देयर, मीन am of a and b is a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 plus b to the power n minus 1. Find n. ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए इसकी. दिस इज फॉर प्रैक्टिस. यू कैन सॉल्व एंड चेक वेदर यू आर गेटिंग द आंसर और नॉट, और आपको समझ में आ जाएगा कौन सा पॉइंट आपके लिए डिफ़िकल्ट है, तो आप फिर से सीख सकते हैं. ओके, क्वेश्चन नंबर 30. प्रूव दैट द सम ऑफ n अर्थमेटिक मीन्स.
Prove that the sum of n arithmetic means inserted between any two numbers is n times the arithmetic mean of those two numbers. मतलब हमें बहुत सारे n arithmetic means के सम को सिंगल मीन का n टाइम्स बताना है यहाँ. So how to do it? Let us go again for let the means be. Let n AMs between A and B are A1, A2, A3 up to AN. Okay. Then A, A1, A2 up to AN, comma B is an AP, as you know this earlier from the starting, you are aware of this thing. अब single mean between A and B is equal to A plus B by 2 होता है. What do we have to prove? To prove is sum of means जो हमने insert किए हैं in between A and B is n times the sum of, or we can say the n times the single mean. Is it okay? ये हमें prove करना है. So again we are aware of D is equal to B minus A upon n plus 1. इसे लेके चलेंगे. इस टर्म को आप याद रखिए, इसका यूज़ बहुत होता है आपके लिए. ओके, लेट्स गो फॉर द सॉल्यूशन. वी विल स्टार्ट विद LHS. LHS इज इक्वल टू है आपके पास A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN. यहाँ A1 की वैल्यू पुट कर दी हमने, इट इज़ A प्लस डी. देन A2 इज़ A प्लस 2D. इस तरह से आपके पास AN कितना आएगा, A प्लस क्या होगा, ये n माइनस 1D होगा कि ND होगा. सो राइट, जितना पोजीशन उतने D. सो आई विल बी गेटिंग ND एज फर्स्ट वन इज कंटेनिंग 1D, सेकेंड कंटेनिंग 2D एंड सो ऑन. अब हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन ऑल? यहाँ कितने मीन्स हैं? n मीन्स. तो A भी n टाइम्स आया है. So I'll write NA, but D के numbers vary कर रहे हैं, तो I'll take out D common और क्या मिल रहा है 1 plus 2 plus 3 से लेके n तक. What is this? आप देख सकते हैं, this is an AP, sum of n terms of an AP we can see here. तो let us go for the formula. sum का formula आपके पास मालूम है. आपके पास अगर last term भी है, first term भी है और कॉमन डिफरेंस दिख रहा है यहाँ, A इज इक्वल टू आपको 1 दिख रहा है फर्स्ट टर्म. लेट अस टेक इट एज डैश, थोड़ा डिफरेंस बताते हैं. D डैश आपको दिख रहा है 1. नंबर ऑफ टर्म्स तो आपके पास n है ही, और nth टर्म A डैश n आपके पास n है. तो लेट अस गो फॉर द फॉर्मूला. S इज इक्वल टू n बाई 2 A डैश प्लस L डैश. दिस फॉर्मूला आई विल बी अप्लाइंग, और A डैश प्लस n आई कैन राइट. So the next step is NA plus n by 2 A plus L. कितना हो जाएगा A plus L? It is first term plus last term into D की वैल्यू भी पुट कर देते हैं. What is the value of D? B minus A upon n plus 1. These two will get cancelled. Let us solve it and see क्या मिलता है हमें. हमारे पास बचेगा NA plus NB minus NA upon 2. Let's take the LCM and solve it. On solving we are getting NA plus NB by 2. Let us take out N common from it. तो क्या मिल गया आपके पास में? A plus B by 2. यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी कि sum of all the means, arithmetic means inserted between two numbers is n times the single mean. This is an important pattern, important formula we can say. आप इसे याद रख सकते हैं.
आगे कहीं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में यू कैन अप्लाई इट डायरेक्टली, ये कंडीशन पूछी गई तो सीधे से अप्लाई कर सकते हैं आप. ओके, नाउ दिस वाज व्हाट वी हैव लर्नड इन मीन. मीन में इस टाइप के और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं. बेसिक कंसेप्ट्स याद रखिएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिए, यू विल गेट द आंसर इजीली. लेट अस गो फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ AP. किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, क्या कुछ खूबियाँ होती हैं उनमें. से पहले एग्जाम्पल से शुरू करते हैं हम लोग. मैंने कुछ एक टर्म लिया 2, 4, 6, 8 अप टू डैश डैश डैश. व्हाट इज दिस? यू कैन सी इट इजीली दैट दिस इज एन AP with first term 2 and common difference also 2, isn't it? अब अगर आपने इसमें 1 ऐड किया, इस AP में अगर आपने सभी टर्म्स में, if you have added all the terms by 1, you are getting what? If you are adding 1 in all the terms, what are you getting from here? It is n plus 6 plus 1 and 8 plus 1 and so on. What is this? 3, 5, 7, 9. क्या दिख रहा है आपको ये? क्या ये एक AP है ना? क्योंकि यहाँ देखिए आपके पास फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस आप हर टर्म में देखिए, you are getting it as 2 again. Similarly, if you will be subtracting 1 in it, -1 कर दिया अगर सारे टर्म्स में आपने, तो आपको क्या मिलेगा? Just check it. We are getting 1, 3, 5, 7 and so on, isn't it? This again is an AP. Let us multiply 2 in it. अगर मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया सभी टर्म्स में तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए वजह बताइए ज़रा. 4, फिर 8, then 12, then 16 and so on. Is it an AP? Yeah, you can see that it is again an AP, है ना? तो यहाँ पे आपने क्या क्या देखा? अगर किसी भी AP में मैं किसी टर्म को मल्टीप्लाई करती हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ या ऐड भी करती हूँ तो मुझे फिर से AP मिलता है ना? लेट अस गो फॉर एक क्या बच गया, एक एप्लीकेशन बच गया आपका डिवीजन, वो भी चेक कर लेते हैं. लेट अस डिवाइड ऑल द टर्म्स बाय 2. क्या मिलता है? लेट अस गो फॉर इट. 1, इफ आई डिवाइड इट बाय 2 तो आई एम गेटिंग 1, 2, 3, 4. अरे वाह, ये भी एक AP मिल गया आपको, isn't it? So these are called the properties. इस तरह से कुछ प्रॉपर्टी obtain होती है. Let us write them. The property, we can say properties are in general, मैं एक साथ बता दे रही हूँ. If we add, subtract or है ना, multiply or divide all the terms of an AP by a fixed number, the resultant is also an AP. Similarly, the next property we can say as if A, B, C are in AP. So आपको मालूम है कि अगर कोई टर्म्स AP में है तो उनमें डिफरेंस कॉमन होता है, डिफरेंस इक्वल होता है. So let us go for it. B minus A is equal to C minus B. तो इस टर्म को एज अ प्रॉपर्टी ट्रीट किया जाता है. किसी क्वेश्चन में इस टर्म का डायरेक्टली यूज़ होता है सॉल्व करने में. अगर मैंने दोनों B साथ में ले आए तो आई एम गेटिंग 2B इज इक्वल टू A प्लस B, A plus C. This is again an AP. Similarly, I can write B is equal to A plus C by 2. मतलब B is the mean of AC. आपने mean पढ़ा है ना? If 3 terms are in AP, तो the middle term is called the mean of that term. First 2. So I am getting B is equal to A plus C by
2। तो इन तीनों प्रॉपर्टीज़ का आप यूज़ कर सकते हैं टू सॉल्व क्वेश्चन। इट इज़ एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, जिस तरह से क्वेश्चन में ज़रूरत हो आप इनमें से किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। तो लेट अस सॉल्व द क्वेश्चंस रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज़। We will be solving 3 questions. Question number 31A. If A, B, C are in AP, prove that. तो AP की properties जो conditions आपने AP में पढ़ी हैं उनका use करके हमें ये question solve करने हैं. So first question is A, B, C are in AP, then we have to prove this condition. A minus C the whole square is equal to 4 into A minus B into B minus C. तो इसे किस तरह से solve करें? Let us go for it. Given A, B, C are in AP, तो अभी जैसे हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा तो इन प्लेस ऑफ B I कैन राइट A प्लस C/2 क्योंकि B इज़ द मीन ऑफ AC। तो ये चीज़ मैं अप्लाई करूँगी RHS पे और देखते हैं कि LHS मिलता है कि नहीं। I'll take RHS is equal to 4A minus B into B minus C. Okay, let us put the value of B. अब देखिए ज़रा, आप आंसर निकालने का ट्राई करें कितना आता है। This is 4 into A minus A plus C/2 into A plus C/2 minus C. This gives you, taking LCM, क्या मिलेगा ज़रा देखें, 4 to A minus C into A minus C upon 2. तो सॉल्व करने से आपको मिल गया A minus C the whole square, which is your LHS, isn't it? See the next question, question number 32. If A, B, C are in AP, we have to prove this condition. Given A, B, C are in AP. अब आप जानते हैं कि किसी भी टर्म, अगर कोई भी टर्म्स AP में है, अगर मैं किसी चीज़ को ऐड करूं, सब्ट्रैक्ट करूं, मल्टीप्लाई करूं और डिवाइड करूं तो मुझे आंसर AP में ही मिलेगा। तो लेट अस सी। तो मैंने क्या करना है यहाँ पे, आई एम डिवाइडिंग ऑल द टर्म्स बाय ABC। तो आई एम गेटिंग A अपॉन ABC, B अपॉन ABC, C अपॉन ABC are in AP, isn't it? इस तरह से आपको ये टर्म भी AP में मिलेंगे। सॉल्व कर लीजिए, देखिए क्या मिलता है आपको। यू आर गेटिंग एन आंसर एज 1 अपॉन BC, 1 अपॉन AC, 1 अपॉन AB आर इन AP। इस तरह से एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके यू कैन गेट द आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। थोड़ा सा लेवल बढ़ जाता है इसका, ये एक सिंपल क्वेश्चन। अब आपको ये सोचना आना चाहिए, अगर आप सोच पाएँ तो बहुत जल्दी इसे सॉल्व कर लेंगे। द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर हैविंग कि ABC आर इन AP, है ना। द फर्स्ट पार्ट ऑफ 32 इज दिस, द फर्स्ट पार्ट इज दिस एंड द सेकेंड पार्ट वी हैव टू प्रूव अगेन ABC आर इन AP। Okay, so we are getting, again we will be dividing it by ABC. I am getting ABC, B upon ABC and C upon ABC are in AP. फिर what are we left with? क्या बच जाता है हमारे साथ? 1 upon BC, 1 upon AC, 1 upon AB are in AP, no? अब हमें कुछ और एडजस्ट करना पड़ेगा जिससे हमें आंसर आ पाए, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तो आप सीखेंगे उस चीज़ को। बार बार इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करिए। लेट अस सी। तो अब हमने क्या करना है, देखिए मैं इसमें AB प्लस BC प्लस CA ऐड कर रही हूँ, सब में मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं। दिस इज BC, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन AC, AB प्लस BC प्लस CA अपॉन
AB, अभी भी आंसर नहीं आया, वी हैव टू अप्लाई अनदर कंडीशन नाउ। अभी तक हमने क्या किया, प्रॉपर्टी यूज़ करी, डिवाइड किया पहले सब टर्म्स को एक नंबर से। नाउ आई हैव मल्टीप्लाइड ईच टर्म बाय अ फिक्स्ड नंबर। नाउ लेट अस सब्ट्रैक्ट। अब इन सब टर्म्स को मैं 1 से सब्ट्रैक्ट करूं तो देखिए क्या आता है। अगर मैंने इन सब टर्म्स को अब 1 से सब्ट्रैक्ट कर दिया तो व्हाट एम आई गेटिंग आफ्टर टेकिंग LCM, मेरे पास क्या बच रहा है, आई एम लेफ्ट विद AB प्लस AC अपॉन BC, फिर AB प्लस BC अपॉन AC एंड AC plus BC upon AB. These will be in R in AP. ये हर बार AP में ही रहेंगे, R in AP. तो what am I left with? Common निकाल लीजिए A. You are getting B plus C upon BC. B कॉमन निकाला तो A plus C upon AC and C कॉमन निकाला तो A प्लस B अपॉन AB R इन AP। तो इस तरह से आपको टर्म्स को, पैटर्न को यूज़ करना है टू गेट द सोल्यूशन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। वी विल मीट अगेन विद द नेक्स्ट टॉपिक GP, that is geometric mean.